Now we will be dealing with constructive res judicata. It says that any matter which might and ought to have been made a ground of defense or attack in such former suit shall be deemed to have been made a matter directly and substantially in issue in such suit. अब प्रिंसिपल क्या है एक्सप्लेनेशन 4 का? एक चीज मार्क कर लीजिएगा एक्सप्लेनेशन 4 में, माइट एंड ऑट. ठीक है, ये वो माइट और ऑट नहीं है जैसा कि ज्यादातर लोग समझते हैं. इट इज माइट एंड ऑट. अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वर्कमैन ऑफ कोचिन पोर्ट ट्रस्ट वर्सेस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में बोला था कि इट इज वेल नोन दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इट इज कोडिफाइड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द सीपीसी, बट इट इज नॉट एग्जॉस्टिव. Section 11 generally comes into play in relation to civil suits, but apart from the codified law, the doctrine of res judicata or principles of res judicata has been applied long since in various other kinds of proceedings and situations by the courts in England, India and other countries. The rule of constructive res judicata is engrafted in the explanation 4 of section 11 of the CPC, and in many other situations also. Principles not only of direct res judicata but of constructive res judicata are also applied. If by any judgment or order any matter in issue has been directly and explicitly decided, the decision operates as res judicata and bars the trial of an identical issue in a subsequent proceedings between the same parties. The principle of res judicata also comes into play when by the judgment and order a decision of a particular issue is implicit in it. That is, it must have been deemed to have been necessarily decided by implication. Then also the principle of res judicata on that issue is directly applicable. When any matter which might and ought to have been made a ground of defense or attack in a former proceeding but was not so made, then such matter in the eye of law, to avoid multiplicity of the litigation and to bring about the finality in its decision, is deemed to have been constructively in issue and therefore is taken to have been decided. So basically the principle underlying the explanation 4 is that where parties have an opportunity of controverting a matter, that should be taken to be the same thing if the matter has actually controverted and been decided. A party is bound to bring forward his whole case in respect of the matter in issue and cannot abstain from relying or giving up any ground which is in controversy and for consideration before court, and afterwards make it a fresh cause of action for a fresh suit. तो एक बड़ा सिंपल सा इलस्ट्रेशन देता हूँ. अब मान लीजिए प्लेंटिव जो है डिफेंडेंट को सू करता है, ठीक है. ए स्यूज बी. ए प्लेंटिव है और बी डिफेंडेंट है. अब ए के पास एक सब्जेक्ट मैटर पे 3 इश्यूज मौजूद हैं जो वो यूज कर सकता है बी के खिलाफ, लेकिन वो सोचता है कि ऐसे चांसेस हैं कि मेरा सूट डिसमिस हो जाए, और अगर मेरा सूट डिसमिस हो गया तो रेस जुडिकाटा लग जाएगा और फिर मैं वो मैटर ला नहीं पाऊंगा. तो ऐसे में वो क्या करता है, वो अपने केस में सिर्फ 2 ही इश्यूज लगाता है, तीसरा इशू छोड़ के रखता है. वो सोचता है कि लेट अस सपोज उन 2 इश्यूज का जजमेंट, उन 2 इश्यूज के पॉइंट पे जजमेंट मेरे खिलाफ आ गया, तो मैं तीसरा इशू जो डिसाइड नहीं हुआ है उसको कॉज ऑफ एक्शन बना के एक फ्रेश सूट लाऊंगा सेम सब्जेक्ट मैटर पे. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए ए का सूट डिसमिस हो जाता है, डिसमिस हो गया, और वो जब थर्ड पॉइंट के बेसिस पे जो उसके पास अवेलेबल था उसके बेसिस पे एक नया सूट लाने की कोशिश करता है, तो वो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की डॉक्ट्रिन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि लॉ की नज़र में वो इम्प्लाइडली डिसाइडेड माना जाएगा, क्योंकि दैट मैटर वाज अवेलेबल टू ए, दैट पॉइंट वाज अवेलेबल टू ए, एंड दैट पॉइंट माइट एंड ought to have been made a ground of attack in the former proceeding. क्योंकि प्लेंटिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं तभी मैंने बोला ग्राउंड ऑफ अटैक.
अगर डिफेंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा होता तो मैं बोलता ग्राउंड ऑफ डिफेंस. सो इन दिस केस दैट पॉइंट might and ought to have been made a ground of attack in the former proceeding but was not so made. So such matter in the eye of law, to avoid multiplicity of the litigation and to bring about finality in its decision, will be deemed to have been constructively in issue and therefore taken as decided. ठीक है, लॉ मान लेगा कि वो पॉइंट ऑलरेडी पिछले सूट में डिसाइड हो गया है. तो ये डीमिंग फिक्शन है. इट इज व्हाट? इट इज अ डीमिंग फिक्शन. आप देखिए, अगर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा ना होता, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा को आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ रेस जुडिकाटा भी कहा जाता है, अगर मान लीजिए ना होता, देन इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर अ पार्टी टू बाईपास द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा. वो कभी भी अपना वोल केस लाता ही नहीं कोर्ट के सामने. वो हमेशा बिट्स एंड पीसेस में अपना केस लाता, और अगर उसके फेवर में जजमेंट आ जाता तो ठीक, ना आता तो वो नए नए ग्राउंड्स एलिज करके जो उसके पास पहले अवेलेबल थे उसके बेसिस पे सक्सेसिव सूट्स ला रहा होता. तो 3 मैक्सिम्स जो मैंने आपको बताई थी वो तीनों की तीनों डिफीट हो जाती हैं, है ना. सबसे बड़ी मैक्सिम कौन सी डिफीट होती है? इंटरेस्ट रिपब्लिक आउटसाइड फिनिश लिटियम. इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट द लिटिगेशन मस्ट कम टू एन एंड. तो लिटिगेशन तो विल नेवर कम टू एन एंड दैट वे. और parties would have bypassed the rule of res judicata and that would amount to an abuse of the process of the court as well, है ना. और फिर if you are bypassing the rule of res judicata then that would also amount to violation of public policy. So in order to protect all of that and in order to protect the rule of res judicata itself, the doctrine of constructive res judicata is there. Remember, when any matter which might and ought to have been made a ground of defense or attack in the former proceeding, but was not so made, then such matter in the eye of law, to avoid multiplicity of the litigation and to bring about the finality in its decision, is deemed to have been constructively in issue and therefore taken as decided. Now let me give you a few illustrations which will clear this point. So here this illustration. A sues B for possession of property on the basis of ownership. ए बी को सू करता है किस बेसिस पे? फॉर द पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. सूट डिसमिस हो जाता है. नाउ ए ट्राइज टू ब्रिंग अ क्लेम फॉर द सेम प्रॉपर्टी अगेंस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ द क्लेम ऑफ एडवर्स पोजेशन. एडवर्स पोजेशन के ग्राउंड पे क्लेम लाने की कोशिश करता है. या लेट अस सपोज ही ट्राइज टू ब्रिंग फॉरवर्ड अ क्लेम ऑफ पोजेशन in context of the same property against B on the ground that he is entitled to possess that property as a mortgagee. ठीक, इन्हीं ग्राउंड्स पे वो लाने की कोशिश करता है. तो क्या ये अलाउ होगा? The answer would be no. वो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से बार्ड हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राउंड्स, ये इलस्ट्रेशन के पर्पस के लिए ऑलरेडी प्रिज्यूम किया जा रहा है कि these grounds were already available to him. और क्योंकि वो ग्राउंड्स उसके पास अवेलेबल थे, yet he did not use it as a ground of attack against the defendant, hence it would be taken to be hid by the rule of constructive res judicata and would be taken to be implicitly decided. Then we come to another illustration. That is, A files a suit against B to recover money on a promissory note. B कहता है कि promissory note is obtained from him by the virtue of undue influence. Undue influence के basis पे A ने उससे वो promissory note sign करवाया है, and that is why A should not be allowed to succeed in his suit. इनका objection और contention is overruled by the judge और A के favor में decree pass हो जाती है. अब जो B हैं, he is very much bothered by it. वो एक suit institute करते हैं अगेंस्ट ए ऑन द ग्राउंड कि जिस प्रॉमिसरी नोट के बेसिस पे ए ने बी को सू किया था, वो प्रॉमिसरी नोट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द वर्च्यू ऑफ कोअर्जन और फ्रॉड. पर अनड्यू इन्फ्लुएंस का ग्राउंड नहीं लेता क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइडेड है. बी सिर्फ कोअर्जन और फ्रॉड का ग्राउंड लेता है. अब ऐसी सिचुएशन में बी के सूट का क्या होगा? इट वुड बी हिड बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा. क्यों? बिकॉज These grounds were available to him in the former suit. वो ये ग्राउंड ले सकता था पर उसने नहीं लिया. वो ये कह सकता था कि apart from undue influence, the promissory note has been obtained from him due to coercion or fraud. पर उसने नहीं लिख लिए ग्राउंड्स. These grounds were available to him.
ऐसी सिचुएशन में it would be deemed to have been implicitly decided because these ground ought to have been made as a ground of defense, yet they were not so made by B, and hence B's suit would be hid by constructive res judicata. ठीक है, ये ग्राउंड ऑफ डिफेंस का इलस्ट्रेशन दे रहा हूं. नेक्स्ट पॉइंट, A sues B to recover damages for a breach of contract and obtains a decree in his favor. ठीक है, A B को sue करता है to recover damages for a breach of contract और A के फेवर में डिक्री आ जाती है, मतलब एक सक्सीड्स ऑन दैट मैटर. और B जो है वो दूसरा सूट लॉन्च करते हैं टू रिसिंड दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑन whose basis A has obtained a decree. वो कहते हैं कि the contract which was between him and A should have been rescinded because it does not fully represent the agreement between the parties. और rescission of the contract अगर आपको नहीं पता है तो सेक्शन 27 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में है. और rescission का इफेक्ट ये होता है that the contract would be revoked. और भी उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अभी इतना ही जानिए. अब rescission का ग्राउंड इनके पास पिछले सूट में भी अवेलेबल था पर इन्होंने नहीं लिया, तो इनका सूट would be barred by what? B का suit would be barred by constructive res judicata because the ground that he is taking in the subsequent suit could have been made a ground of defense in the former suit, and since he didn't use it, it would be hid by res judicata. और देखिए constructive res judicata की जब भी बात हो रही है ना, तो ये ऑलरेडी assume करके चला जा रहा है कि res judicata के सारे पॉइंट्स भी सेटिस्फाई हो रहे हैं. ठीक है, एक्सेप्ट उसमें एडिशन ये है कि a matter might and ought to be taken as a ground of defense or attack. साथ में बस ये ऐड किया जा रहा है. एक इलस्ट्रेशन देता हूं और A sues B for a declaration that he is entitled to certain property as an heir of X. A B को sue करता है for a declaration कि वो certain property के लिए entitled है क्योंकि वो X का वारिस है. He is an heir of X. इनका सूट डिसमिस हो जाता है, A का सूट इज डिसमिस्ड. A फिर दूसरा सूट फाइल करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ इंजंक्शन दैट ही हैज बिकम एन ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बाय एडवर्स पोजेशन. A files another suit for injunction, for the relief of injunction, for the relief of injunction on the ground that he is the owner of the property by adverse possession. पहले सूट में इनका ग्राउंड ये था कि he is an heir of X. दूसरे सूट में इनका ग्राउंड है he has become the owner of the property by the virtue of what? Adverse possession. तो adverse possession के basis पे he is claiming the relief of injunction. ठीक है, अब ये ग्राउंड इनके पास पिछले सूट में भी अवेलेबल था पर इन्होंने नहीं लिया, तो क्या होगा? The suit would be barred by constructive res judicata. Now let me give you a few illustrations in a different tone where constructive res judicata would not apply. Now let us suppose A sues B for the possession of certain property, alleging that certain property has come to his share on the ground of family partition, on the ground of joint family partition. कि मतलब partition हो गया दोनों के बीच में और he is entitled to certain properties on basis of that partition, और वो property उसके शेयर में आई है. जिसको सू कर रहे हैं B, वो कोर्ट में जाके प्रूव करता है कि अभी तक पार्टीशन हुआ नहीं है जॉइंट फैमिली के बीच में, और सूट डिसमिस हो जाता है, कोर्ट मान जाता है बी का कंटेंशन. अब जो सब्सिक्वेंट सूट बाय ए अगेंस्ट बी है फॉर पार्टीशन ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, ये बार नहीं होगा. ठीक है, द सब्सिक्वेंट सूट वुड नॉट बी बार्ड क्योंकि पार्टीशन इज समथिंग दैट हैज नॉट हैपेंड इन द पास्ट. इट डजंट मीन इट वुडंट हैपन इन द फ्यूचर, and it is within the precincts of A, within the dominion of A, कि he can lodge a suit for partition against B. ठीक है, तो that would not be hid by constructive res judicata. Next illustration, A sues B to recover certain property, alleging that B was holding the property under a lease which has expired. The lease is not proved and the suit is dismissed accordingly. अब क्या A का subsequent suit against B on the basis of general title on the land बार होगा? The answer is no. इसमें बार नहीं होगा. वैसे ही as a mortgager
A sues B for redemption of certain property, alleging that he has mortgaged it with the possession to B. The mortgage is not proved before the court and the suit is dismissed. A then files another suit against B for the possession of the same property, claiming to be owner thereof. इस सिचुएशन में भी सूट बार्ड नहीं होगा. अब ये जो दोनों इलस्ट्रेशन है, इट इज डिफरेंट देन इलस्ट्रेशन फर्स्ट, जो मैंने पहला इलस्ट्रेशन आपको दिया था. देखिए, पहले इलस्ट्रेशन में ए बी को सू कर रहा था फॉर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप. ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में जब उसका सूट डिसमिस हुआ, देन देयर आफ्टर ही कुडंट क्लेम द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एज अ मॉर्गेजी. ठीक है, क्योंकि ये ग्राउंड वो पहले ले सकता था. लेकिन ये जो अभी मैंने आपको इलस्ट्रेशन दिए कि ए sues B to recover certain property alleging that B was holding the property under a lease, इसमें लीज नहीं प्रूव हो पाई. ठीक है, इसमें लीज नहीं प्रूव हो पाई. तो ए जो है लीजर की कैपेसिटी में सू कर रहा था. पहले कैपेसिटी समझ लीजिएगा. इस इलस्ट्रेशन में ए वाज सुइंग इन द कैपेसिटी ऑफ द लीजर, हेंस a suit on the basis of general title would not be barred. Similarly, A as a mortgager B को sue कर रहा था for redemption of the certain property. उसके बाद वाला जो illustration मैंने दिया. अब इस situation में mortgage ही prove नहीं हो पाई. Mortgage was unable to be proved. तो इस situation में क्या होगा? When mortgage was not proved, तब A can file another suit on the possession of the same property claiming to be owner thereof. ये जो लैटर के दोनों इलस्ट्रेशंस हैं और जो पहला इलस्ट्रेशन है, इसमें डिफरेंस मेन एक चीज गौर करिएगा कि जिस कैपेसिटी में सू किया जा रहा है, एक में लीजर की कैपेसिटी में सू किया जा रहा है, एक में मॉर्गेजर इज सूइंग फॉर रिडेम्पशन. ठीक है, दोनों की कैपेसिटी में जो मेन एसेंस है वही प्रूव नहीं हो पाई. जब लीजर की कैपेसिटी में सू कर रहे थे तो लीज नहीं प्रूव हो पाई, और मॉर्गेजर की कैपेसिटी में सू कर रहे थे तो मॉर्गेज नहीं प्रूव हो पाई. अब इन दोनों ही सिचुएशन में ओनरशिप का जो ग्राउंड होता है वो बहुत अलग होता है एज कंपेयर टू दिस. ठीक है, इट इज टोटली डिफरेंट. तो इन अ सूट ऑफ मॉर्गेज, ओनरशिप कैन नॉट बी मेड अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक. ठीक है, एंड सिमिलर इज द केस ऑफ लीसी. दिस इज व्हाई दोनों की सिचुएशन में कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा नहीं अप्लाई करेगा. ठीक है, क्योंकि यहां पे नेचर ऑफ द सूट बहुत अलग है. दैट इज व्हाई हियर अ सूट ऑन द बेसिस ऑफ जनरल टाइटल और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इज नॉट बीइंग हिट बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा. ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल इलस्ट्रेशन है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया. ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है. अब एक फाइनल इलस्ट्रेशन आपको देता हूं. A sues B for a declaration that he is owner of certain property. The suit is dismissed holding that he is not the owner. A B को sue करता है इस declaration को लेके, he is owner of the property. But the suit is dismissed holding that he is not the owner of that property. At the time of the suit, A जो है adverse possession में है उस property को लेके. इनका पहला सूट खारिज हो चुका है कि ये ओनर है प्रॉपर्टी के. कोर्ट ने वो केस खारिज कर दिया, और एट द टाइम ऑफ द सूट ए इज इन एडवर्स पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी. लेकिन एडवर्स पोजीशन के अंदर उसने अभी अपना टाइटल परफेक्ट नहीं किया है. कुछ साल बाकी हैं जो जब एक्सपायर कर जाएंगे तब उसकी एडवर्स पोजीशन टोटली कंप्लीट हो जाएगी, एंड देन ही कैन प्रूव हिज टाइटल बाय द वे ऑफ एडवर्स पोजीशन. अब ऐसी सिचुएशन में जब वो साल निकल गए और ए फिर से सूट दायर करता है कि नाउ ही हैज परफेक्टेड हिज टाइटल on the basis of adverse possession, तो क्या ये वाला सूट बार होगा? No, it won't be barred, क्योंकि ये ग्राउंड उसके पास पहले अवेलेबल नहीं था, है ना. Adverse possession was yet to be perfected. जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाती तब तक तो वो ग्राउंड उसके पास अवेलेबल नहीं था. तो जो explanation 4 है वो क्या कहती है? Might and ought to be taken as a ground of defense or attack. तो वो मिसिंग है क्योंकि वो ग्राउंड उसके पास ओरिजिनली अवेलेबल नहीं था. इट वाज येट टू बी कंप्लीट. अब जब कंप्लीट हो गया और अवेलेबल है, और तब अगर उसने लिया है, देन दैट वुड नॉट बी बार्ड बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा. ठीक है, वहीं इसी सिचुएशन में अगर ही वाज द ओनर और उसका एडवर्स पोजीशन का भी टाइटल कंप्लीट हो चुका होता और वो ग्राउंड उसके पास अवेलेबल होता, येट उसने ना लिया होता,
तब वो बार्ड होता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में। बट चूंकि एडवर्स पोजीशन यहाँ पे परफेक्ट नहीं हुई थी, हेंस इन दैट सिचुएशन द सूट वुड नॉट बी बार्ड बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, बिकॉज वहां पे माइट एंड ऑट की पोजीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, देखिए जो एक्सप्रेशन माइट एंड ऑट है ये बहुत ही वाइड इंपोर्ट का है। वर्ड माइट presupposes that the party affected had knowledge of the ground of attack or defense at the time of the previous suit. माइट का तात्पर्य ये है कि जो पार्टी जो अफेक्ट हुई है डिसीजन से, it had the knowledge of the ground of attack or defense at the time of previous suit. Ought compels the party to take such ground. ठीक है, जो टर्म ought है कि लेना ही चाहिए था, it compels the party to take such ground. और जो दोनों शब्दों के बीच में वर्ड एंड जुड़ा है, इट इज अ कंजंक्टिव, हेंस बोथ ऑफ द ग्राउंड हैज टू बी सेटिस्फाइड। दोनों ग्राउंड को सेटिस्फाई करना होगा। सो रिमेंबर, यू हैव टू रीड माइट एंड ऑट एज अ कंजंक्टिव, नॉट डिसजंक्टिव, एंड अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट द मैटर माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड raised in a previous litigation, there cannot be a constructive res judicata. Might and ought दोनों coexist करना चाहिए था। इसीलिए जो मैंने एडवर्स पोजीशन वाला एग्जांपल दिया, एडवर्स पोजीशन परफेक्ट नहीं हुई थी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जब परफेक्ट नहीं हुई तो उसे वो रेस कैसे कर सकता है? वो ग्राउंड रेस ही नहीं कर पाता, और रेस नहीं कर पाता, हेंस इन दैट सिचुएशन जब वो आगे चल के एडवर्स पोजीशन परफेक्ट कर लेता है और तब नया सूट दायर करता है, so in that situation उसका subsequent suit would not be hid by res judicata, constructive res judicata. अब एक चीज बता देता हूँ कि how would you know कि the point should might and ought to have been raised in a previous proceeding as a ground of defense or attack. तो देखिए इसके लिए कोई rigid rule नहीं है। एक टेस्ट ये दिया गया है मुल्ला इन सिविल प्रोसीजर कोर्ट की फर्स्ट वॉल्यूम में, इन्होंने बताया है कि एक इसका टेस्ट ये हो सकता है to see whether by raising the question the decree passed in the previous suit should have been defeated, varied or in any way affected. If the question is of such a nature, it must be deemed to be the question which ought to have been raised in the former suit. ठीक है, I'll reiterate again that one of the tests is to see whether by raising the question the decree which was passed in previous suit should have been defeated, varied or in any way affected. If the question is of such a nature, it must be deemed to be a question which ought to have been raised in the former suit. But personally speaking, मेरा personal opinion ये है कि the case law of जसवंत सिंह versus custodian is also a very useful guidance जो Supreme Court ने decide किया था on 7th May 1985. उसमें कोर्ट के सामने ये इशू था कि how would you come to decide the point of res judicata and constructive res judicata. तो Supreme Court ने बोला कि the section provides that no court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in the former suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court. Explanation 4 to that section provides that any matter which might or ought to have been made a ground of defense or attack in the former suit shall be deemed to have been directly and substantially in issue in such suit. Then the Supreme Court enumerated some points which are very helpful for you. Supreme Court said that it is well settled that in order to decide the question whether the subsequent proceeding is barred by res judicata, it is necessary to examine the question with the reference to the first forum or competence of the court, parties and their representatives, matter in issue, matters which ought to have been made a ground of defense or attack in the former suit, final decision. Apart from these, from my own side, मेरा personal opinion है, इसमें आप दो ground और add कर सकते हैं. For that purpose, you can also look into the question of cause of action claimed and the relief claimed. ये दोनों चीजें भी देखी जा सकती हैं. ठीक है, just in order to see that रेस जुडिकाटा प्रॉपरली अप्लाई कर रहे हैं या नहीं. अब इसमें कॉज ऑफ एक्शन और रिलीफ क्लेम डेफिनेटिव क्राइटेरिया नहीं होता है. ठीक है, ये ऐसा क्राइटेरिया नहीं विच विल मेक और ब्रेक द प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा, बट इट इज हेल्पफुल टू सी कि पूरा मैटर चल क्या रहा है और वेदर द रेस जुडिकाटा और
technical or artificial form of res judicata, that is constructive res judicata, will it apply or not? ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये देखा जाता है, कॉज ऑफ एक्शन और रिलीफ क्लेम भी देखा जाता है, पर जसवंत सिंह वर्सेस कस्टोडियन में वो मेंशन नहीं किया गया, दैट इज व्हाई आई एम मेंशनिंग इट फ्रॉम माय ओन साइड। तो ये ब्रैकेट्स में कहीं लिखिएगा, और ध्यान रखिएगा उसमें ये भी लिखिएगा कि इट इज नॉट द डिटर्मिनेटिव क्राइटेरिया, ये डिटरमाइन नहीं करते हैं आउटकम। आउटकम तो वही 5 पॉइंट्स डिटरमाइन करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बताए। फोरम एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द कोर्ट, पार्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, मैटर एंड इशू, मैटर्स व्हिच ऑट टू हैव बीन मेड अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक एंड द फाइनल डिसीजन, ये डिटर्मिनेटिव क्राइटेरिया है, और ये सारे को एग्जिस्ट करने चाहिए एक साथ। लेकिन जो बाकी के दो मैंने बताए, इट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रेलेवेंसी, इट इज ओनली a helping hand to decide all of these points जो सुप्रीम कोर्ट ने एलुसिडेट किए, एक हेल्पिंग ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स प्लीडिंग ऑफ द पार्टीज, इश्यूज फ्रेम्ड एंड फाइनल डिसीजन तो आपको इंक्वायर करने ही होंगे। अब मैं आपको एक लोकस क्लासिकस बताता हूँ, इस केस का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है, और स्पेशली रेस जुडिकाटा के कॉन्टेक्स्ट में। केस का नाम है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस नवाब हुसैन। इसका साइटेशन है AIR 1977, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1680। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जो अग्रीव्ड पार्टी थी, जो ओरिजिनली प्लेंटिव था, क्योंकि देखिए स्टेट गया है अपील में, अपील की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि ओरिजिनली जब केस इंस्टीट्यूट हुआ था तो वहाँ पे प्लेंटिव थे नवाब हुसैन, ठीक है। इनफैक्ट ये पिटिशनर थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इन्होंने एक पिटिशन दायर किया था बिकॉज ही वॉज डिसमिस फ्रॉम सर्विस बाय देन डायरेक्टर DIG, सॉरी ही वॉज डिसमिस्ड बाय DIG, और क्योंकि इनको अपॉइंट एक्चुअली IGP ने किया था, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो इनका मेन ग्राउंड ये था कि DIG इनको डिसमिस नहीं कर सकते थे, ठीक है। पर एक दिक्कत थी, एज अ पिटिशनर एक दिक्कत थी, वो ये थी कि ये ग्राउंड इनके पास पहले ही अवेलेबल था पर इन्होंने नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो इनका जो सबसे पहला सूट जो इनके पास था वो इन्होंने उसमें ये ग्राउंड नहीं लिया था कि ही वॉज अपॉइंटेड बाय IGP। इन्होंने वहाँ पे सिर्फ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चैलेंज की थी, और उन्होंने ये मेन ग्राउंड लिया था कि जो उनका डिसमिसल का ऑर्डर है, इट इज़ not correct because he was not afforded a reasonable opportunity of being heard before the passing of the order. So basically it was more based on कि natural justice के principles का वायलेशन हुआ है, ऑडी अल्टरम पार्टम के प्रिंसिपल का वायलेशन हुआ है, पर ये ग्राउंड इनके पास तब भी अवेलेबल था। ही हैड दिस ग्राउंड अवेलेबल कि ही वाज अपॉइंटेड बाय इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड हेंस ही कैन ओनली बी डिसमिस्ड बाय अ पर्सन इन रैंक ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और हायर, क्योंकि आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये सेफगार्ड उसको देता है। तो टाइमलाइन एक बार ध्यान से समझिएगा, इनके पास फर्स्ट इंस्टेंस पे मौका था टू क्लेम दैट ही वाज अपॉइंटेड बाय अ पर्सन हु वाज इन अ रैंक ऑफ IGP, hence he can only be dismissed, IGP मतलब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो he can only be dismissed by a person who belongs to the rank of इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और हायर, ठीक। ये इनके पास मौका था, पर इन्होंने फर्स्ट इंस्टेंस पे क्या ग्राउंड लिया, इन्होंने ये ग्राउंड लिया कि जो ऑर्डर ऑफ डिसमिसल है जो DIG ने पास किया है, इट इज रॉन्ग, इट शुड बी कॉज्ड एंड सेट असाइड बिकॉज ही वॉज नॉट अफोर्डेड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ ऑडी अल्टरम पार्टम का वायलेशन हुआ है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने नवाब हुसैन के खिलाफ ये प्ली ली कि इनके ग्राउंड शुड बी सेट असाइड बाय द वर्च्यू ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, क्योंकि ये ग्राउंड इनके पास पहले मौजूद था, इन्होंने क्यों नहीं लिया। ये हाई कोर्ट के सामने ही स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बोल रही थी। हाई कोर्ट ने पिटिशनर नवाब हुसैन की बात मानी, और हाई कोर्ट ने ये बोला कि जो सूट है इट इज़ नॉट बार्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, और जो नवाब हुसैन है ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द ऑर्डर ऑफ डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यह हाई कोर्ट का कहना था कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से इनका जो पिटीशन है वो बार्ड नहीं है नवाब हुसैन का, एंड ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड
by an order of DIG, Deputy Inspector General of Police के order से, he cannot be dismissed. अब स्टेट ऑफ यूपी गई अपील में, ठीक है, तो अपेलेंट कौन बना? अपेलेंट बना स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस वूम, रिस्पोंडेंट नवाब हुसैन, ठीक। अपील पे स्टेट ऑफ यूपी गई है क्योंकि स्टेट ऑफ यूपी अग्रीव्ड है, ठीक है। अब सवाल उठता है सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसे डील किया। सुप्रीम कोर्ट ने, पहले मैं फैक्चुअल आंसर दे देता हूँ कि फैक्ट्स में क्या बात की, फिर लॉ की बात करता हूँ। फैक्ट्स पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि the question whether the principle of constructive res judicata could be invoked by the party to a subsequent suit on the ground that a plea which might and ought to have been raised in earlier proceeding but was not so raised was left open. उन्होंने कहा पहले एक चीज देखी, ये जो क्वेश्चन है ये ओपन क्वेश्चन है. That in turn led to the High Court to the conclusion that principle of constructive res judicata could not be made applicable to a writ petition, and that is why it took the view that it was competent for the plaintiff in this case to raise an additional plea in the suit even though it was available to him in the writ petition which was filed by him earlier but was not taken. As it is obvious, the High Court went wrong in taking the view because law in regard to the applicability of the principle of constructive res judicata has been clearly laid down in the decision of Devilal Modi's case. उस पर मैं अभी बाद में आऊँगा कि रेड पिटिशन पे रेस जुडिकाटा लगता है या नहीं और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लगता है या नहीं. दोनों का आंसर है हाँ, रेड पिटिशन और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा दोनों आर इन हार्मनी विद ईच अदर. रेड पिटिशंस पे भी रेस जुडिकाटा और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लगता है, सो दैट इज़ अ नो ब्रेनर. खैर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाई कोर्ट इज रॉन्ग इन दिस एस्पेक्ट कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा रेड पिटिशन पे नहीं लगता. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा it is not in controversy before us that the respondent did not raise the plea in writ petition which was filed in High Court, that by virtue of clause 1 of article 311 of the Constitution he could not be dismissed by DIG, Deputy Inspector General of Police, as he was appointed by the Inspector General of Police. It is also not in controversy that it is an important plea which was within the knowledge of the respondent and could well be taken in the writ petition, but he contended himself by raising the other pleas that he was not afforded a reasonable opportunity to meet the case against him in the departmental inquiry and the action taken against him was malified. It was therefore not permissible for him to challenge his dismissal in the subsequent suit on the other ground that he has been dismissed by the authority subordinate to that by which he was appointed. That was clearly barred by the principle of constructive res judicata and the High Court erred in taking up contrary view. Hence the result is that the appeal is allowed. मतलब state of UP जो grounds allege कर रही है हमारे सामने वो एकदम सही कर रही है and we are allowing the appeal. Basically क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये ग्राउंड आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल था और अवेलेबल होने के बाद भी आपने उसको नहीं लिया. आपने क्या ग्राउंड लिया? दैट यू हैव नॉट बीन अफोर्डेड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. यही आपका ग्राउंड था. Hence it is clear that if that ground was available then it might and ought to be made a ground of attack. आपके केस में it should have been made a ground of attack, but you didn't use it. And since you didn't use it, it is impliedly deemed to have been decided. ठीक है, now you cannot take that plea again. अब आप ये प्ली नहीं ले सकते कि आपको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने अपॉइंट किया था तो उसी को डिसमिस करना चाहिए था आपको. डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल इज नॉट कॉम्पिटेंट इन लॉ टू डिसमिस यू. तो ऐसी सिचुएशन में वंस योर सूट इज हेड बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, नाउ यू कैन नॉट रीएजिटेट द सेम मैटर अगेन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस केस. इट इज अ लोकस क्लासिकस. अब आप एक बार समझ गए तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं कि इसमें जो सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस था, he was dismissed for service by DIG. He challenged his order of dismissal by filing writ petition in the High Court on the ground that he was not afforded a reasonable opportunity of being heard. And it was contended by the state that this petition is hid by constructive res judicata. Yet the High Court disagreed with the opinion of state of Uttar Pradesh. या आप state simply लिख लीजिए. The High Court disagreed with the opinion and the objections of the state. The matter went in appeal to the Supreme Court. The Supreme Court said that his suit is decided by constructive res judicata because he had a ground available that he was appointed by Inspector General of Police. Hence DIG had no power in law to dismiss him. He had this ground available, and having this ground being available to him, he still did not use it. Hence
डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा विल स्क्वेयरली अप्लाई. अब आप इसको रीजन कर लीजिएगा. एक्सप्लेनेशन 4 में माइट एंड नॉट वाली सिचुएशन अराइज हो जाती है. इट शुड हैव बीन मेड अ ग्राउंड ऑफ अटैक बट ही डिडंट यूज़ इट. फिर आप चाहें तो माइट एंड नॉट पे भी एलैबोरेट कर सकते हैं थोड़ा सा, जैसे कि मैंने पहले अभी आपको बताया. माइट प्रीसपोजेस द पार्टी अफेक्टेड हैड नॉलेज ऑफ द ग्राउंड of attack or defense at the time of the previous suit, and not compels the party to take such ground. And having not taken such matter, in the eyes of law, such issue would be deemed to have been decided. ठीक है. So if you are a lawyer, आपको ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि आप जो सूट है ना अपने क्लाइंट से जब भी डिस्कस कर रहे हो तो ये बोलें कि सारे के सारे सूट के मैटर एक साथ ले जाने के लिए सारे मैटर्स अवेलेबल करवाइए और मुझे सब कुछ बताइए. क्योंकि अगर कोई भी मैटर रह गया और बाद में आपको याद आया तो ध्यान रखिएगा सूट वुड बी हिट बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा. फिर आप उस ग्राउंड को नहीं ले पाएंगे. वैसे ही इफ़ यू आर अ जज यू हैव टू सी कि कहीं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई ऐसा तो नहीं कि कर रहा है केस पे एंड द पार्टी इज़ नॉट ब्रिंगिंग फॉरवर्ड हिज होल केस. आपको फिर वो पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे जो मैंने अभी तक आपको बताए. Jaswant Singh versus custodian or all the principles of res judicata and constructive res judicata which I have told you so far. ठीक है. अब एक पॉइंट आपको बताना है कि क्या रेस जुडिकाटा की डॉक्ट्रिन प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अप्लाई करेगी कि नहीं. मतलब इमेजिन अ सिचुएशन वेयर द कोर्ट विच हैज अ jurisdiction on a particular matter says that I do not have a jurisdiction. मान लीजिए गलत इंटरप्रिटेशन कर देता है. तो क्या ऑन अ प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ अनरिलेटेड टू फैक्ट्स, ऑन अ प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ अनरिलेटेड टू फैक्ट्स, क्या रेस जुडिकाटा लगता है या नहीं. ये याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द आंसर इज नो. नहीं अप्लाई करेगा रेस जुडिकाटा. देखिए इस पे लोकस क्लासिकस है जो आज भी आप सुप्रीम कोर्ट को हर केस में मेंशन करते हुए देखेंगे जहां पे भी ऐसा पॉइंट अराइज होता है. वो है मथुरा प्रसाद, Baju Jaiswal and others versus Dosi Bhai NB Gigi Bhoy, decided on 26th April 1970. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि the object of the doctrine of res judicata is not to fasten upon parties special principles of law as applicable to them inter se, but to ascertain their rights and the facts upon which these rights directly and substantially depend, and to prevent this ascertainment from becoming nugatory by precluding the parties from reopening or recontesting that which has been finally decided. A question relating to the jurisdiction of a court cannot be deemed to have been finally determined by an erroneous decision of the court. सुना आपने? A question relating to the jurisdiction of a court cannot be deemed to have been finally determined by an erroneous decision of the court. If by an erroneous interpretation of the statute, the court holds that it has no jurisdiction, the question would not, in our judgment, operate as res judicata. Similarly, by an erroneous decision, if the court assumes jurisdiction which it does not possess under the statute, the question cannot operate as res judicata between the same parties, whether the cause of action in the subsequent litigation is the same or otherwise. मतलब कोर्ट का सीधा सा कहना है कि क्वेश्चन ऑफ जुरिसडिक्शन इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. तो अगर कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है और वो गलत डिसाइड कर देता है कि उसके पास जुरिसडिक्शन नहीं है, या कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं है और वो डिसाइड कर देता है उसके पास जुरिसडिक्शन है, तो ऐसी सिचुएशन में रेस जुडिकाटा वुड नॉट अप्लाई. ठीक है, बिकॉज इट इज अ प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ अनरिलेटेड टू फैक्ट्स. सुप्रीम कोर्ट फर्दर सेज that it is true that in determining the application of rule of res judicata, the court is not concerned with the correctness or otherwise of the earlier judgment. ये बात सच है कि res judicata अप्लाई कर रहा है या नहीं, इसके लिए कोर्ट इस बात से कंसर्न नहीं होता है कि पिछला जजमेंट सही है या नहीं. ठीक है, उसकी करेक्टनेस से कंसर्न नहीं होता. कोर्ट कंटिन्यूज एंड सेज दैट द मैटर इन इश्यू, if it is one purely of fact decided in earlier proceeding by a competent court, must in a subsequent litigation between the same parties be regarded as finally decided and cannot be reopened. A mixed question of fact and law determined in earlier proceeding for the same reason cannot be reopened. तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि as far as the issues of fact are concerned and mixed issues of fact and law are concerned,
वहां पे कोर्ट वुड नॉट बी डिटरमाइंड विद द करेक्टनेस. ठीक है, they are not at all concerned with the correctness of the earlier decision or the earlier suit. But जहां पे decision is on the question of law, such as interpretation of the statute, it will be res judicata in a subsequent proceeding between the same parties where the cause of action is the same for the expression matter in issue in section 11 of the CPC. That is, it means the facts on which the right is claimed or denied and the law applicable to the determination of the issue. But jahan bhi the question is one purely of law and it relates to the jurisdiction of the court or a decision of the court sanctioning something which is illegal, or by resort to the rule of res judicata, a party affected by a decision will not be precluded from challenging the validity of that order under rule of res judicata, for a rule of procedure cannot supersede the law of the land. सुप्रीम कोर्ट का कहना है, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन ऑफ लॉ में भी दो डिवीजन किए हैं. क्वेश्चन ऑफ लॉ में बोला कि जहां पे इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट की बात है वहां पे रेस जुडिकाटा होगा in the subsequent suit between the same parties where the cause of action is the same, as because the expression matter in issue means the right litigated between the parties, that is that the facts on which the right is claimed or denied and the law applicable to the determination of the issue. तो उस क्वेश्चन में रेस जुडिकाटा होगा. लेकिन जहां पे सवाल ऐसा है which is purely of the question of law और वो फैक्ट से रिलेट ही नहीं करता, unrelated to facts, and it gives rise to a right such as the jurisdiction of the court, or if the court sanctions something which is illegal, then by resorting to the rule of res judicata, a party affected by such decision will not be precluded from challenging the validity of that order, because res judicata is what? It is a procedural law, and procedural law cannot act in derogation of the substantive law of the land. ठीक है, at the end of the day res judicata क्या है? एक procedural rule है ना? It is not a substantive rule of law. तो ऐसी सिचुएशन में इट कैन नॉट ओवर राइड दीज थिंग्स. इट कैन नॉट ओवर राइड द पॉइंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन. कि मान लीजिए कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है टू डिसाइड टाइटल, और वो टाइटल डिसाइड करने लग जाए, और अगर उसने टाइटल डिसाइड कर लिया तो क्या आप कह सकते हैं कि नहीं पिछले सूट में डिसाइड हो गया एंड हेंस subsequently the same question cannot be raised because it is barred by res judicata? The answer would be no, because it is a pure question of law unrelated to the facts. स्मॉल कॉज कोर्ट के पास jurisdiction ही नहीं है उसको entertain करने का, तो उसने कैसे entertain कर लिया? Similarly, अगर किसी कोर्ट के पास jurisdiction है, मान लीजिए सिविल कोर्ट है, it has jurisdiction to decide title, वो आपका सूट रिजेक्ट कर देता है, कहता है मेरे पास jurisdiction नहीं है. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जब लॉ कह रहा है कि उसके पास जुरिसडिक्शन है और सिविल जज एरोनियसली हेल्ड करता है कि उसके पास जुरिसडिक्शन नहीं है, तो वो इशू रेस जुडिकाटा नहीं हो जाता, बिकॉज इट इज अ प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड इट इज अनरिलेटेड टू फैक्ट्स. ठीक है, या मान लीजिए लॉ में कोई रेमेडी प्रोवाइड है और कोर्ट एक इलीगल रेमेडी की बात करता है. ठीक है, कुछ ऐसा ऑर्डर करता है विच इज इलीगल, टोटली इलीगल. तो ऐसी सिचुएशन में क्या बाय रिजॉर्टिंग टू द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा ऐसे डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता? ऑफ कोर्स यू कैन चैलेंज इट, क्योंकि इलीगैलिटी इज समथिंग व्हिच इज नॉट सैंक्शन्ड बाय लॉ, है ना. एंड सिंस अ क्वेश्चन अराइजेस दैट इफ समथिंग इज लीगल और इलीगल, इट वुड बी अ प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ अनरिलेटेड टू द फैक्ट्स, प्योरली क्वेश्चन ऑफ लॉ अनरिलेटेड टू द फैक्ट्स. तो ऐसी सिचुएशन में भी रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा. ठीक है, प्रिंसिपल बहुत साधारण सा है. अ रूल ऑफ प्रोसीजर दैट इज द रेस जुडिकाटा cannot supersede the law of the land. और एक और चीज़ याद रखिएगा, ये तो खैर मैंने क्लियर कर दिया, एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन ऑफ रेस जुडिकाटा है, इट इज़ अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ. ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बस फॉर द सेक ऑफ रिविजन एक बार फिर रिइटरेट कर रहा हूँ. इट इज़ अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ. अब इसमें कुछ और चीज़ें याद रखिएगा, मथुरा प्रसाद वर्सेस दोषी भाई के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ. इसमें आपको ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है कि when cause of action is different, or when the law since the earliest decision has been altered by a competent authority, or when the decision relates to the jurisdiction of the court to try the earlier proceeding, or where the earlier decision declared a valid transaction which is prohibited by law, the decision would not operate as res judicata. That all fell within the ratio of Mathura Prasad वर्सेस दोषी बाई. ठीक है,
एंड जस्ट टू एम्फसाइज कि वाई दिस जजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक लेटेस्ट जजमेंट बताता हूं जिसने इसी जजमेंट को रेफर किया है. दैट इज कैनरा बैंक वर्सेस एनजी सुब्बरैया शेट्टी, डिसाइडेड ऑन 20th अप्रैल 2018. ठीक है. अब उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने कंस्पेक्टस ऑफ डॉक्ट्रिन्स देखी एंड देन इट केम टू अ कंक्लूजन कि रेस जुडिकाटा लग रहा है या नहीं. देन इट रेफर्ड टू द जजमेंट ऑफ मथुरा प्रसाद एंड द सुप्रीम कोर्ट सेड that in strictness the ratio decidendi of Mathura Prasad case is confined to the issue of jurisdiction of the court, but it is equally well settled that the obiter dicta of their lordship is entitled to greatest respect and weight and is indeed binding if it can be found that they intended to lay down a principle. The issue therefore is as to what else apart from the ratio was sought to be laid down by the Supreme Court in that case. The very closely guarded language used by their lordships in the body of the judgment leads me to conclude that they wish to confine their observation within the narrowest limits. The expression used is that a pure question of law unrelated to the facts, the pure question of law unrelated to the rights of the parties in previous suit. It is of a very great significance that their lordships, with their meticulous precision of language, have nowhere laid down in the judgment that a pure question of law can never be res judicata between the parties. Indeed, it has been said in the contrary terms. The emphasis, therefore, in the expression above said is on the fact that such a pure question of law must be unrelated to the rights of parties. In other words, you can say it must be unrelated to the facts. ठीक है, फैक्ट से एकदम अलग रहना चाहिए उसे. Then the Supreme Court continues and says, it stands notice that a decision by a court on a question of law cannot be absolutely disassociated from the decision on the facts on which the right is founded. Consequently, what was exactly to be connoted by the expression a pure question of law unrelated to the rights of the parties was itself expounded upon by their lordships without intending to be exhaustive. The court has indicated specifically the exceptional cases in which the special considerations apply for excluding them from the ambit of general principle of res judicata. The principles of law which the lordships herein have reiterated is that a pure question of law, including the interpretation of the statute, will be res judicata in a subsequent proceedings between the same parties. तो ये तो illustration उन्होंने बताया था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि as far as interpretation of statute in the subsequent proceeding between the same parties where the cause of action is the same would be treated as matter in issue in the context of section 11 of the CPC और वहाँ पे res judicata apply करेगा. So as far as interpretation of the statute is concerned, the decision उस पे तो question of law होगा तो वो तो bind करेगा. But where the situation is pure question of law which is unrelated to the facts, or in other words जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने टर्म यूज किया है pure question of law unrelated to the rights of the parties, that is the term used by Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट ने उसके कंटेक्स्ट में कहा कि इस रूल के 4 एक्सेप्शन हैं और ये है कि the obvious one कि अगर cause of action different है the rule of res judicata would not apply. Secondly, where the law since the earlier decision has been altered by the competent authority, then the res judicata will not apply. Thirdly, where the earlier decision between the parties related to the jurisdiction of the court to try the earlier proceedings, the same would not be allowed to assume the status of a special rule of law applicable to the parties, and therefore the matter would not be res judicata. मतलब अगर earlier decision में jurisdiction का point था और jurisdiction of the point गलत decide किया गया है, in that situation वो भी res judicata नहीं लगेगा, because it would be the pure question of law which is not related to the right of the parties. And fourthly, where the earlier decision declared a valid transaction which is patently prohibited by law, that is to say it sanctifies a glaring illegality, then also res judicata will not apply. ठीक है. So basically आज भी वही पॉइंट्स रिटरेट किए जा रहे हैं जो उस टाइम पे डिसाइडेड थे. तो इन वाले पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा. अब देखिए एग्जाम में कभी आपको इतना डेप्थ में घुस के आपसे सवाल नहीं पूछेंगे वो, या एप्लीकेशन करने को नहीं कहेंगे, बस आपको अवेयरनेस रखनी है. ये बातें मेंशन करनी बड़ी ज़रूरी होती हैं जब सवाल ऐसा आ जाए कि वेदर res judicata will apply on a pure question of law or not.
तो आपको डिफाइन करना है कि प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ दो तरीके के हो सकते हैं, विच आर रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ द पार्टीज और विच आर रिलेटेड टू द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो उस सिचुएशन में प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ जैसे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट है, जो पार्टीज के बीच मेन कंटेक्स्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन और सेम प्रोसीडिंग में, वो तो रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा। लेकिन जो बाकी के एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट हो गया, या क्वेश्चन है ज्यूरिसडिक्शन का, या कोर्ट सैंक्शन समथिंग इलीगल विच इज एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो ऐसी सिचुएशन में रेस जुडिकाटा के रूल को रिक्वायर करके यू कैन नॉट सैंक्टिफाई अ ग्लेयरिंग इलीगैलिटी ना। और रीजन आपको बड़ा सिंपल दिया था मथुरा प्रसाद वर्सेस दोषी भाई के जजमेंट ने, रूल ऑफ प्रोसीजर कैन नेवर सुपरसीड द लॉ ऑफ द लैंड। वो लॉ ऑफ द लैंड उन्होंने एक्सप्रेशन यूज किया है सब्सटैंशिव लॉ के कंटेक्स्ट में, ठीक है। और ये जो मैंने आपको 2018 वाला जजमेंट बताया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारे ये वाले इस पॉइंट पे जजमेंट देखने के बाद एक बार पोजीशन फिर से रीइटरेट की थी, ठीक है। तो इसमें जो प्रिंसिपल समराइज किए गए थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रिंसिपल जो उन्होंने बताया था 2018 वाले जजमेंट में, कैनरा बैंक वर्सेस एनबी शेट्टी, एनजी शेट्टी, इसमें बताया था कि द जनरल रूल इज दैट ऑल इश्यूज दैट अराइज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली in former suit or proceeding between the same parties are res judicata in a subsequent suit or proceeding between the same parties. These would include issues of fact, mixed issues of fact and law, and issues of law. ठीक है? To this general proposition, there are certain exceptions when it comes to the issues of law. Issues of law को लेके कुछ exception है. पहला, where the issue of law decided between the same parties in the former suit or proceeding relates to the jurisdiction of the court, then an erroneous decision in the former suit or proceeding is not res judicata in a subsequent suit or a proceeding between the same parties, even where the issue raised in the second suit or proceeding is directly and substantially the same as that was raised in the former suit or proceeding. ठीक है? Then Supreme Court said, an erroneous decision to the jurisdiction of the court cannot clothe the court with the jurisdiction where it has none. जहाँ पे उसके पास jurisdiction नहीं है, तो उस पर erroneous decision उसको दे नहीं सकता है ऐसा jurisdiction. Obviously, a civil court cannot send a person to jail for an offence committed under Indian Penal Code. If it does so, such a judgment would not bind the magistrate or the sessions court in a subsequent proceeding between the same parties, where the magistrate sentences the same person for the same offence under the IPC. Equally, a civil court cannot decide a suit between a landlord and a tenant arising out of the rights claimed under Rent Act, where Rent Act clothes a special court with the jurisdiction to decide such suit. For example, under Section 28 of the Bombay Rent Act, the small cause court has exclusive jurisdiction to hear and decide the proceedings between the landlord and a tenant in respect of rights which arise out of Bombay Rent Act, and no other court has jurisdiction to embark upon the same. In this case, even though the civil court, in the absence of statutory bar created by the Rent Act, would have the jurisdiction to decide such suit, its statutory bar created by the Rent Act must be given effect as a matter of पब्लिक पॉलिसी। मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर मान लीजिए इस बार के होते हुए भी सिविल कोर्ट ने उस इश्यू को डिसाइड कर दिया जो वो नहीं डिसाइड कर सकता है, तब भी बाय द इश्यू ऑफ पब्लिक पॉलिसी उस बार को इफेक्ट दिया जाएगा, मतलब उस इश्यू पर रेस जुडिकाटा नहीं अप्लाई करेगा। वैसे ही अगर स्मॉल कॉज कोर्ट टाइटल डिसाइड करने लगे जो वो डिसाइड ही नहीं कर सकता, जुरिसडिक्शन ही नहीं है उसके पास, तो क्या रेस जुडिकाटा का रूल बचाने आएगा? उसको नहीं बचाने आएगा। ऐसे सिचुएशन में रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई because that is a pure question of law wholly unrelated to the rights of the parties, ठीक है, or which is unrelated to the facts which give rise to a right. In that situation it would not operate as res judicata. Then the Supreme Court continued and said, an issue of law which arises between the same parties in a subsequent suit or proceeding is not res judicata if by an erroneous decision given on a statutory prohibition in the former suit or proceeding, the statutory prohibition is not given effect to. This is despite the fact that the matter in issue between the parties may be same as directly and substantially an issue in the previous suit or proceeding. This is for the reason that in such cases, the rights of the parties are not only matter for consideration, as in the case of erroneous interpretation of the statute inter parties, as the public policy contained in the statutory prohibition cannot be set at naught. This is for the same reason
as that contained in the matter which pertains to the issues of law that raise the jurisdictional questions. तो यहाँ पे बॉम्बे रेंट एक्ट का जो इलस्ट्रेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो इट इज जस्ट वन इलस्ट्रेशन. वैसे ही आप कंस्ट्रू कर लीजिए, जहाँ पे स्टैट्यूटरी बार है या जहाँ पे लॉ कुछ प्रोहिबिट करता है करने को, और मान लीजिए सिविल कोड वही करने लगता है विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ऐसी सिचुएशन में बाय रिजॉर्टिंग टू द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा कैन यू सैंक्शन एन इलीगैलिटी? नो, यू कैन नॉट. एंड लास्ट एक्सेप्शन दैट वाज टोल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट in this judgment was that another exception to the general rule follows from the matter in issue being an issue of law different than in previous suit or proceeding. This can happen when the issue of law in the second suit or proceeding is based on different facts from the matter directly and substantially in issue in the first suit or proceeding. Equally, where the law is altered by the competent authority since the earlier decision, the matter in issue in the subsequent suit or proceeding is not the same as in previous suit or proceeding because law is to be interpreted differently. तो अगर पॉइंट ऑफ लॉ अल्टर हो चुका है सिंस द अर्लियर प्रोसीडिंग, तो रेस जुडिकाटा नहीं अप्लाई करेगा, है ना, क्योंकि रेस जुडिकाटा कहाँ पे अप्लाई करता है? स्टैटिक सिचुएशंस पे. जब लॉ ही अल्टर हो चुका है उस पॉइंट पे, देन रेस जुडिकाटा वुड नॉट अप्लाई. ठीक है, तो हालांकि याद रखिएगा कि क्वेश्चंस ऑफ लॉ पे भी रेस जुडिकाटा अप्लाई करता है, पर उसके कुछ एक्सेप्शन है. ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? जो मैंने अभी तक बताया. ठीक है, अभी तक मैं आपसे एक्सेप्शन ही डिस्कस कर रहा था. और इन एक्सेप्शंस को कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? अ प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ अनरिलेटेड टू द फैक्ट्स व्हिच गिव्स राइट टू अ राइट वुड नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा. ठीक है, एक फाइनली एक बार क्लैरिफिकेशन के लिए मैं रिटरेट कर दूंगा, जस्ट इन केस आप भूल ना जाएं. क्या कि even a pure question of law such as interpretation of the statute will be res judicata in a subsequent proceeding between the same parties where the cause of action is the same for the expression matter in issue in section 11 of the CPC means right litigated between the parties, that is the facts on which the right is claimed or denied and the law applicable to the determination of issues. However, where the question is one purely of law and it relates to the jurisdiction of the court or decision of the court sanctioning something which is illegal, by resort to the rule of res judicata, a party affected by the decision will not be precluded from challenging the validity of that order under the rule of res judicata, for a rule of procedure cannot supersede the law of the land. वैसे ही when a cause of action is different or when the law since the earlier point of time since the earlier decision has been altered by a competent authority, or where the decision relates to the jurisdiction of the court to try the earlier proceeding, or where the earlier decision declared a valid transaction which is prohibited by law, the decision will not operate as res judicata in a subsequent proceeding. ठीक है, ये याद रखिएगा. अब हम लोग जरा आ जाते हैं इस एक्सप्रेशन पे, पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स. ठीक है, पार्टी का लिटरल मतलब क्या होता है? Party is a person whose names appears on the record at the time of the decision. आप देखते होंगे प्लेंटिफ का नाम लिखा होता है, और भी अगर को प्लेंटिफ्स हैं उनका भी नाम लिखा होता है. फिर आप देखते होंगे डिफेंडेंट का नाम लिखा होता है, और भी को डिफेंडेंट्स होते हैं उनका भी नाम लिखा होता है. ठीक है, तो उनको जनरल सेंस में पार्टी कहा जाता है. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंटरवीनर एप्लीकेशन लगाते हैं कि दे वांट टू इंटरवीन इन द सूट बिकॉज दे हैव अ स्पेसिफिक इंटरेस्ट इन द सूट. ठीक है, तो ऐसे लोग इंटरवीनर भी हो सकते हैं. तो अगर कोई पर्सन हु हैज इंटरवीन इन अ सूट, देन ही इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ पार्टी. ठीक है, अगर एट द टाइम ऑफ गिविंग फाइनल डिसीजन, अगर बीच में सूट के ट्रायल के दौरान कोई इंटरवीनर आया था और कोर्ट ने उसे रिकॉर्ड पे ले लिया, ठीक है, तो इंटरवीनर को भी बाइंड करेगा कोर्ट का डिसीजन, और रेस जुडिकाटा की डॉक्ट्रिन उस पर भी अप्लाई करेगी. वो ये नहीं कह सकता कि अरे मैं तो इंटरवीनर था, मैंने तो ना मैं प्लेंटिफ की कैपेसिटी में था ओरिजिनली, ना मैं डिफेंडेंट की कैपेसिटी में था ओरिजिनली, मैंने तो खुद एज एन इंटरवीनर एप्लीकेशन मैंने अप्लाई किया था. कोर्ट बोलेगा कि नहीं भाई, आपने इंटरवीन किया था, डिसीजन ऑफ द सूट विल बाइंड यू एज वेल. ठीक है, लेकिन कोई अगर ऐसी पार्टी है जिसका नेम इज स्ट्रक ऑफ, या वो इज डिस्चार्ज फ्रॉम द सूट, या वो डाइज पेंडिंग द सूट, then in that situation he is not considered as a party. क्योंकि अगर वो मर जाता है, क्योंकि फिर उसमें कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं अबेटमेंट के, ऑर्डर 22 के भी इश्यूज आ जाते हैं,
या कभी कभी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होता है टू स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द पार्टी विच इज इम्प्रॉपरली जॉइंट। ठीक है, जैसे कि आप ऑर्डर 1 का रूल 10 देखेंगे तो आप देखेंगे कि कोर्ट हैज द जुरिस्डिक्शन टू स्ट्राइक आउट और ऐड पार्टीज। तो स्ट्राइक आउट के कंटेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसने किसी पार्टी को हटा दिया कि दिस पार्टी डज नॉट बिलोंग इन दिस पर्टिकुलर सूट, तो उसको फिर पार्टी नहीं माना जाएगा, इवन दो ओरिजिनली प्लेंटिफ ने उसे हो सकता है इम्प्लीट किया हो। सिमिलरली अगर किसी पर्सन को सूट से डिस्चार्ज कर दिया जाता है बाय कोर्ट, देन ही इज ऑल्सो विल नॉट बी कवर्ड विद इन द एक्सप्रेशन पार्टी। कोई पर्सन डाइज पेंडिंग द सूट and his name is erroneously on the record, then even he is not considered as a party। क्योंकि देखिए अगर कोई मर जाता है ना, तो अबेटमेंट पे मैं अभी आपको ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं ले जाऊंगा, लेकिन अगर कोई पार्टी मर जाती है पेंडिंग सूट, देन इट इज़ इनकम्बेंट कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को रिकॉर्ड पे लाया जाए। अगर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि अक्सर सिविल केसेस में आप पढ़ते हैं नेम एक्स, फिर ब्रैकेट्स में लिखा होता है डेड, रिप्रेजेंटेड थ्रू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स अगर रिकॉर्ड पे नहीं लाए गए तो ध्यान रखिए डेड पार्टी के खिलाफ कोई सूट नहीं हो सकता, तो उसको भी पार्टी की कैटेगरी में नहीं लाया जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट a party whose name is struck off, who is discharged from the suit, or who dies pending the suit but name continues to appear on the record erroneously will not be covered within the expression party। ठीक है, अब जो ये एक्सप्रेशन है ना कि पर्सन्स वो क्लेम अंडर द पार्टीज टू द सूट, पार्टीज टू द सूट आपको पता है डिफेंडेंट और प्लेंटिफ होते हैं। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में द पर्सन्स वो क्लेम अंडर द पार्टी टू द सूट, उनको एक टेक्निकल टर्म में रखा जाता है, उसको बोला जाता है प्राइवीज। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उसको आप सीधे प्राइवीज बोल सकते हैं। वैसे ही इंटरवीनर्स भी होते हैं, माइनर्स भी होते हैं, स्ट्रेंजर्स भी होते हैं, तो सबको एक एक करके डील करेंगे। सो एज फार एज द पर्सन्स वो क्लेम अंडर द पार्टीज टू द सूट, जिनको आप प्राइवीज के नाम से जानते हैं, या पार्टीज वो रिप्रेजेंट देम, दे आर रियली द पार्टीज फॉर द डिसीजन ऑफ द सूट, तो उन पे तो रेस जुडिकाटा अप्लाई सीधे सीधे करेगा। इंटरवीनर्स पे मैं आपको बता चुका हूं कि एक बार कोर्ट ने इंटरवीनर को रिकॉर्ड पे रख लिया तो डिसीजन टू द सूट उसको भी बाइंड करेगा। ठीक है, फिर वो बाद में उसको लगा कि अरे यार मेरे खिलाफ चला गया जजमेंट, इट वुडंट मैटर टू द कोर्ट। अगर बस कोर्ट को ये देखना चाहिए कि वो जो इंटरवीनर है वो नेसेसरी पार्टी है या नहीं। ठीक है, माइनर्स का क्या है? देखिए माइनर्स जो है ना खुद तो सू नहीं कर सकते, माइनर्स को जो सूट लॉन्च करना होता है वो उनका नेक्स्ट फ्रेंड ही कर सकता है। ठीक है, और वो ऑर्डर 32 ऑफ द सीपीसी के हिसाब से होता है। ऑर्डर 32 का अगर सब रूल 1 देखेंगे तो वो कहता है एवरी सूट बाय अ माइनर शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय इन हिज नेम बाय अ पर्सन वो इन सच सूट शैल बी कॉल्ड द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द माइनर। वैसे ही जब माइनर डिफेंड कर रहा होता है तो देयर हैज टू बी अ गार्डियन। ठीक है, उसका गार्डियन उसे डिफेंड करता है उसके बिहाफ पे। सो एज फार एज द माइनर इज कंसर्न्ड वो इज प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटेड बाय हिज नेक्स्ट फ्रेंड और हिज गार्डियन और डिफेंडेड बाय हिज गार्डियन। तो ऐसी सिचुएशन में जो रेस जुडिकाटा है वो उसको भी बाइंड करेगा। ठीक है, अब माइनर वो हैज बीन प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड इज ऑल्सो बाउंड। ठीक, एंड बाय प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इट मीन्स ऑर्डर 32 में जितनी भी चीजें इट शुड बी कंप्लाइड विद। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कि क्या जो एक्सप्रेशन पार्टी है इसके अंदर स्ट्रेंजर्स आता है? तो आंसर इज नो, स्ट्रेंजर्स टू द सूट नहीं आ सकता, क्योंकि प्रोसीडिंग्स बिटवीन द टू पार्टी और उसमें जो भी डिक्री पास हुई इट कैन नेवर बाइंड द स्ट्रेंजर। ये बात याद रखिएगा। तो स्ट्रेंजर उस टर्म में नहीं आएगा। माइनर तब आ सकता है, ये देखिए क्वालिफाइड टर्म्स है, माइनर तब आ सकता है जब ऑर्डर 32 से सारा कंप्लायंस है। अगर माइनर सू कर रहा है देन देयर हैज टू बी अ नेक्स्ट फ्रेंड, अगर माइनर डिफेंड कर रहा है देन देयर हैज टू बी अ गार्डियन, वो शुड प्रॉपरली रिप्रेजेंट हिम और ये दिखाना चाहिए कि प्रेजुडिस उसको कोई नहीं हुई है। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी जजमेंट आएगा सूट में रेस जुडिकाटा माइनर के ऊपर भी लगेगा। लेकिन आपने सोच लीजिए बिना गार्डियन के माइनर को सू कर दिया, ठीक है, या माइनर स्यूज विदाउट हिज नेक्स्ट फ्रेंड, तो उस सिचुएशन में जो डिक्री है उस पर रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा, बिकॉज देयर हैज टू बी, इनफैक्ट तो सूट ही नहीं एंटरटेन होगा। ये तो मैं पहले ही बता दूं, रेस जुडिकाटा तो जानने दीजिए, एक थियोरेटिकल और एकेडमिक बात कर रहे हैं, लेकिन सूट ही नहीं एंटरटेन होगा। क्योंकि सबसे पहली चीज देखता है कोर्ट कि अगर माइनर है तो नेक्स्ट फ्रेंड है उसका रिकॉर्ड पे या नहीं।
In fact, just let me read you Order 32, Rule 5, Sub Rule 2. It says every order made in a suit or on any application before court in which a minor is any way concerned or affected, without such minor being represented by an ex-friend or guardian of the suit, as the case may be discharged, and where the pleader of the party as whose instance such order was obtained knew or might reasonably have known the fact of such minority with cause to be played by such pleader. तो बेसिकली अगर आपने माइनर को, जिसमें माइनर इज एनी वे कंसर्न और अफेक्टेड, उसको इम्प्लीड किया विदाउट हिम बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय हिज नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन, जैसा कि भी केस हो, तो माइनर को तो कोर्ट सीधे डिस्चार्ज करेगा. और जिस भी प्लीडर को पता है ना ये बात, या फिर बाय रीजनेबल डिलिजेंस ही माइट हैव नोन कि वो जो जिसको इम्प्लीड किया जा रहा था इज अ माइनर, द फैक्ट ऑफ हिज माइनॉरिटी, इन दैट सिचुएशन में प्लीडर को पर्सनली अपनी जेब से कॉस्ट देना पड़ेगा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. तो पोजीशन जान लीजिए. If the minor has been properly represented by his next friend or the guardian, the decision in the suit will bind him as well. If the minor has not been represented by his next friend or guardian, then practically speaking, suit will not be entertained. Theoretically speaking and actually speaking, that res judicata will not apply on him. ठीक है. अब एक सवाल आता है कि क्या रेस जुडिकाटा को डिफेंडेंट्स के बीच में अप्लाई करता है? द आंसर इज यस. और रेस जुडिकाटा को प्लेंटिफ के बीच में भी अप्लाई करता है. ठीक है, दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा. प्रिंसिपल्स क्या हैं, यही मेन है. फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट देयर मस्ट बी अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द को डिफेंडेंट. Secondly, it must be necessary to decide the conflict in order to give relief to the plaintiff. The question between the co-defendant must be finally decided, and the co-defendants were necessary or proper parties in the former suit. तभी जाके रेस जुडिकाटा होगा. अच्छा, ये किन किन सिचुएशन में हो सकता है? पार्टीशन सूट्स में हो सकता है, सक्सेशन सूट्स में हो सकता है, और भी इनसे मिलते जुलते सूट्स में हो सकता है. तो there must be a conflict of interest between the co-defendants. It must be necessary to decide the conflict in order to give the relief to the plaintiff. The question between the co-defendant must have been finally decided, and the co-defendants were proper parties or necessary parties in the former suit. जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तभी the adjudication or decision will operate as res judicata between co-defendants. ठीक है. यही सारे जो मैंने प्रिंसिपल्स आपको बताए, ये एज इट इज किस पे अप्लाई करेंगे? प्लेंटिफ पे, एज इट इज. बस को डिफेंडेंट्स की जगह को प्लेंटिफ्स लिख दीजिएगा. जब क्वेश्चन हो रेस जुडिकाटा को प्लेंटिफ्स के बीच में अप्लाई करता है या नहीं, अभी जो मैंने 4 प्रिंसिपल आपको बताए उसी को चेंज करके आप क्या कर देंगे, आप उसको को प्लेंटिफ्स के बीच में बता देंगे. और दोनों पॉइंट पे जजमेंट एक है. इफ्तिकार अहमद वर्सेस सैयद मेहरबान अली, डिसाइडेड ऑन 26 फरवरी 1974 बाय द सुप्रीम कोर्ट. इसी में सुप्रीम कोर्ट ने ये वाले पॉइंट्स बोले थे, और फिर साथ में बोला था कि वी सी नो रीजन व्हाई अ प्रीवियस डिसीजन शुड नॉट ऑपरेट एट रेस जुडिकाटा बिटवीन को प्लेंटिफ्स इफ ऑल दीज कंडीशंस आर म्यूटेटिस म्यूटेंडिस सैटिस्फाइड. ठीक है. अब एक और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन से डील करते हैं कि क्या प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट के बीच में रेस जुडिकाटा अप्लाई करता है. तो पहले हम ये जानते हैं कि प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट होता क्या है. अ डिफेंडेंट टू द सूट जिसके खिलाफ कोई भी रिलीफ नहीं क्लेम की गई है, उसको प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट कहते हैं. ठीक है. सो अ पर्सन में बी एडेड एज अ प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट इन अ सूट मेरली बिकॉज हिज प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर अ कंप्लीट एंड फाइनल डिसीजन ऑफ द क्वेश्चंस इन्वॉल्व्ड इन द सूट. प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट का सबसे मेन फीचर क्या होता है? उसके खिलाफ कभी भी कोई रिलीफ नहीं क्लेम होती है. तो ऐसे डिफेंडेंट को कहा जाता है प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट. उसको इम्प्लीड क्यों किया जाता है? क्योंकि उसका इम्प्लीडमेंट इसलिए नेसेसरी है बिकॉज द मैटर शुड बी कंप्लीटली एंड फाइनली डिसाइडेड. तो क्योंकि कोई भी रिलीफ उसके खिलाफ क्लेम्ड नहीं है, तो फाइंडिंग अगेंस्ट हिम डज नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा इन अ सब्सिक्वेंट सूट अगेंस्ट हिम. याद रखिएगा, जो प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट होता है उस पे रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा. यू जस्ट राइट इट डाउन समवेयर. ठीक है. ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है. ऑलवेज रिमेंबर, ये आपको जानना भी चाहिए कि अब प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट इज अ डिफेंडेंट जिसके खिलाफ रेस जुडिकाटा डजंट अप्लाई. ठीक. अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि किसी पार्टी को प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट डिस्क्राइब किया गया हो, या हो सकता है कि उस पार्टी के खिलाफ कोई रिलीफ क्लेम की गई हो
बट वो एक्चुअली में प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट नहीं है, वो एक्चुअली में रियल डिफेंडेंट है, ठीक है. इन सब्सटेंस ही इज अ रियल डिफेंडेंट, बट इन द सूट ही हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट और दैट नो रिलीफ इज क्लेम्ड अगेंस्ट हिम. ऐसी सिचुएशन में जब कोई पार्टी एक्चुअली में प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट नहीं है एंड ड्यू टू वन रीजन और द अदर इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट, तो ऐसी सिचुएशन में वो प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट इन रियलिटी नहीं होती है, तो ऐसी सिचुएशन उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा. याद रखिएगा, सवाल आपको ये आएगा कि प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट पे रेस जुडिकाटा अप्लाई करता है या नहीं, तो आंसर होगा नहीं, नहीं करता है, बिकॉज नो रिलीफ इज क्लेम्ड अगेंस्ट हिम, हेंस द डिसीजन अगेंस्ट हिम विल नॉट बाइंड हिम, क्योंकि उसके खिलाफ कोई रिलीफ ही नहीं क्लेम्ड है. वो सिर्फ इसलिए प्लीडेड होता है in order to completely and effectively adjudicate all the issues that are involved in the suit. ठीक है, वो एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है जिसको लॉ में कभी कभी कंप्लाई करना होता है. मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ एक एक्सेप्शनल सिचुएशन बता रहा हूँ. एक्सेप्शनल सिचुएशन ये है कि जहाँ पे लेट अस सपोज प्लेंटिव बाय वन रीजन और द अदर एक एक्चुअल डिफेंडेंट जो सच में डिफेंडेंट है उसको इम्प्लीड जरूर करता है पर उसको डिस्क्राइब करता है एज अ प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट, या मेयरली उसके खिलाफ रिलीफ नहीं क्लेम करता है. लेकिन अगर सूट का सब्सटेंस देखा जाए और सूट को ध्यान से देखा जाए तो ये पता चलेगा कि जो जिस डिफेंडेंट को प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट बोला जा रहा है वो एक्चुअली में प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट नहीं, वो एक्चुअली में रियल डिफेंडेंट है. तो ऐसे में क्योंकि वो रियलिटी में प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट नहीं है, ऐसे में डिसीजन उसको बाइंड करेगा. अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ए जो है बी को सू करता है ये कहने के लिए कि जो बी है ही इज इन अनलॉफुल पोजेशन ऑफ द लैंड जो ए को बिलोंग करता है, और ए कहता है कि आई एम द रियल ओनर एंड आई एम एंटाइटल्ड टू पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट्स. ठीक है, ये ए डिस्क्राइब करता है और बी को सू करता है. बी कोर्ट में कंटेंड करता है कि मैं और मेरे साथ सी को ओनर है उस प्रॉपर्टी के जिसके लिए ए सू कर रहा है. ठीक है, बी कह रहा है कि मैं और सी आर द को ओनर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और ए इज नॉट द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. अब ए ने, ध्यान रखिएगा, जो पोजेशन की रिलीफ मांगी है वो किसके खिलाफ मांगी है? बी के खिलाफ. अब इस केस में ए अभी भी सी के खिलाफ कोई रिलीफ नहीं मांग रहा, वो सिर्फ बी के खिलाफ रिलीफ मांग रहा है, और कोर्ट जो है क्या कहते हैं सी को ज्वाइन करवा लेता है. ठीक है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस ए मान के चलता है कि ये प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट है, बट एक्चुअलिटी में नहीं, क्योंकि यहाँ पे को ओनर की बात कर रहे हैं ना. तो मतलब अगर बी के खिलाफ डिसीजन हुआ तो सी भी उस डिसीजन से इफेक्ट होगा, है ना, क्योंकि एक बार एक को ओनर का राइट एक्सटिंग्विश कर दिया कोर्ट ने तो दूसरे वाले का भी तो चला गया. तो ऐसी सिचुएशन में जो सी है वो एक्चुअलिटी में क्या है? वो प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट नहीं है, वो रियल डिफेंडेंट है ना, इवन दो ए हैज नॉट क्लेम्ड एनी रिलीफ. तो ऐसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि ए इज द रियल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी नॉट बी एंड सी, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो फाइंडिंग है सी को भी अफेक्ट करेगी इवन दो ए हैज नॉट क्लेम्ड एनी रिलीफ अगेंस्ट बी. क्योंकि सब्सटेंस में क्या दिख रहा है? सब्सटेंस में सी इज द रियल डिफेंडेंट, क्योंकि उसकी को ओनरशिप चैलेंज हो रही है. इवन दो ए हैज नॉट क्लेम्ड एनी रिलीफ अगेंस्ट हिम, ही हैज ओनली क्लेम्ड रिलीफ अगेंस्ट बी. ठीक है, तो ऐसे में सी विल टर्न आउट टू बी अ रियल डिफेंडेंट और उसको रेस जुडिकाटा बाइंड करेगा. अभी एक्सेप्शनल सिचुएशन बता रहा हूँ. ठीक है, जनरल सिचुएशन याद रखिएगा, वो मेन है. प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट पे अप्लाई करता है या नहीं? नहीं करता. ठीक है, ये जो मैंने आपको सिचुएशन बताई ये वो सिचुएशन है जहाँ पे पार्टी के खिलाफ हो सकता है रिलीफ ना क्लेम की गई हो, या पार्टी इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट बट इन रियलिटी जो रियलिटी है सब्सटेंस में ही इज नॉट अ प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट. ठीक है, मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशन देता हूं जो पूछे जा सकते हैं. अब पहला इलस्ट्रेशन है ए sues B for possession of property contending that he is a tenant of C. C is joined as pro forma defendant and no relief is claimed against him. The suit is dismissed as the court finds B to be the owner. C then sues B for the possession on the basis of title. B's contention that the issue regarding ownership of property is res judicata must fail as the issue was decided in the former suit between A and B, not between C and B, as C was only a pro forma defendant. क्योंकि इस इलस्ट्रेशन में A ने C को एक टेनेंट की तरह ज्वाइन किया था. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में
जब ए अपना सूट हार गया और बी के फेवर में जजमेंट आ गया कि यस बी इज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, तो भले ही ए ने उसको एज अ टेनेंट की तरह ज्वाइन किया हो, लेकिन वो एक्चुअलिटी में जब टेनेंट नहीं है, तो इट डजंट मैटर टू हिम, वो एक नया सूट डाल सकता है ये एलेज करने के लिए कि ही इज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। और फिर बी ये नहीं कह सकता कि जो क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप है वो डिसाइड हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप ए और बी के बीच में डिसाइड हुआ था, सी को तो प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट की तरह रखा गया था। ठीक है, तो रेस जुडिकाटा उस पर नहीं अप्लाई करेगा। सेकेंड इलस्ट्रेशन इज ए sues B for rent claiming to be a sole shibate. B contends that X was also a co-shibate and suit filed by A alone was therefore not maintainable. X was joined as pro forma defendant and no relief was claimed against him. A finding by court that A was the sole shibate would operate as res judicata in a subsequent suit between X and A on the question of co-shibateship, as the decision in previous suit was necessary for granting relief in the favor of A. देखिए, जो शिबेत है ये एक हिंदू लॉ का टर्म है, ठीक है। शिबेटशिप में पहले जानिए क्या होता है। शिबेटशिप में क्या होता है, प्रॉपर्टी इज डेडिकेटेड टू एन आइडल, लेकिन एक आइडल तो प्रॉपर्टी मैनेज नहीं कर सकती, तो एक ह्यूमन एजेंट चाहिए उसको मैनेज करने के लिए। सो अ शिबेत is a human ministrant and custodian of the idol. He is the earthly spokesman and the manager of the properties of the idol. ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी जो शिबेटशिप में बिलोंग करती है आइडल को, पर मैनेज कौन करता है, एक ह्यूमन एजेंट। तो जब क्वेश्चन ऑफ शिबेत आएगा, ठीक है, तो दैट हैज टू बी प्रूव्ड बाय इट्स ओन एविडेंस। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो इलस्ट्रेशन मैंने अभी आपको बताया, ये शिबेटशिप के कंटेक्स्ट में है। ठीक है, मैं आपके लिए शिबेत की भी डेफिनेशन स्टडी नोट्स में रख दूंगा, यू कैन इफ यू वांट यू कैन रिफर टू इट। और ये दोनों इलस्ट्रेशन बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एग्जाम में आते हैं और आ सकते हैं, इसलिए अभी बता रहा हूँ। ठीक है, सो यू कांट से कि यू डोंट नो अबाउट इट। अब मैं एक बार फिर रिटरेट कर रहा हूँ जनरल प्रिंसिपल क्या है और मेन चीज़ क्या है। सवाल हमेशा ऐसे आएगा कि क्या प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट पे रेस जुडिकाटा अप्लाई करता है या नहीं करता। ठीक है, The answer is pro forma defendant पे res judicata does not apply. Just keep this in mind, res judicata pro forma defendant पे नहीं अप्लाई करता। जो एक्सेप्शनल सिचुएशन मैंने बताई है, जब वो पूछी जाए तो आंसर करिएगा, यू डोंट नीड टू मेंशन इट आउट ऑफ योर वे। ठीक है, और प्रीलिम्स में इस क्वेश्चन को बहुत एक्सपेक्ट करिएगा प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट को लेके, और उसमें बहुत लोग गलती करते हैं। आप गलती ना करें इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। आज के लिए हमने काफ़ी कंसेप्ट्स डील कर लिए, अब छोटे छोटे पॉइंट्स रेस जुडिकाटा में और बाकी हैं, हम उनसे बाद में डील कर लेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो।